پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایک مرد اور عورت کو مبینہ طور پر نام نہاد غیرت کے نام پر قتل کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے۔ اس کے بعد پولیس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ قتل کا حکم دینے والے قبائلی سردار سمیت 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ماورائے عدالت مقامی جرگے اور سردار مرد و خواتین کو ناجائز تعلقات کے الزام میں قتل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، جس سے بلوچستان میں سیاہ کاری اور سندھ کے کچھ علاقوں میں کاروکاری کا نام دیا جاتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہم نے 11 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا تھا، جن میں سے 2 کی باضابطہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، جبکہ باقیوں سے بھی تفتیش جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عید سے 3 روز پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اس کی ویڈیو واقعے کے 35 روز بعد وائرل ہوئی، جس کے بعد اعلیٰ حکام کی جانب سے تحقیقات کا حکم دیا گیا تھا۔ ویڈیو میں بظاہر چند مسلح افراد ایک مرد اور خاتون کو گولیاں مار کر قتل کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو حکام کی طرف سے تصدیق کرتے ہوئے اصل بتایا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ عام لوگوں کی طرف سے اور خاص کی طرف سے بھی حکام سے اس واقعے پر فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ شدت کے ساتھ کیا گیا تھا اور سوشل میڈیا پر اس معاملے کو بہت زیادہ اٹھایا گیا۔ ریگولر میڈیا بھی کچھ پیچھے تو نہیں تھا۔ بہرحال سوشل میڈیا پر زیادہ اس معاملے کو دیکھا گیا۔ کوئٹہ کی پولیس سرجن ڈاکٹر عائشہ فیض کا کہنا ہے کہ مقتولین کی قبر کشائی کے بعد ان کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مقتولہ خاتون کو 7 گولیاں لگیں، جن میں سے 1 ان کے سر پر ماری گئی، جبکہ مرد کو 9 گولیاں لگی تھی اور یہ گولیاں ان کے سینے اور پیٹ میں لگی تھی۔ عائشہ فیض کہتی ہیں کہ یہ واقعہ 4 جون 2025 کو پیش آیا تھا اور خاتون کی عمر 35 برس کے قریب ہے۔ دوسری جانب بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس روزی خان بیڑچ کی طرف سے اس واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ آئی جی پولیس کو 22 جولائی کو طلب کر لیا گیا۔ چیف جسٹس کے سامنے 22 جولائی کو پیش ہو کے ان افسران کی طرف سے ابتدائی رپورٹ پیش کر دی گئی۔ فیصلہ دینے والے قبائلی سردار کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، یہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی۔ انہوں نے کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ یہ نوبیاحتہ جوڑا نہیں تھا، جیسے سوشل میڈیا پر متعدد افراد نے دعویٰ کیا ہے، بلکہ ان کے درمیان کوئی ازدواجی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو خاتون ہلاک ہوئی ہے اس کے 5 بچے ہیں اور جو آدمی مارا گیا ہے اس کی عمر 50 سال ہے اور اس کے بھی 4-5 بچے ہیں۔ پولیس کی جانب سے موصول ہونے والی FIR کے مطابق یہ واقعہ کوئٹہ کے تھانہ ہنہ سے 40 سے 45 کلومیٹر دور سنجیدی ڈیگار نامی علاقے میں پیش آیا۔ پولیس نے 15 افراد کو FIR میں نامزد کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا اپنی پریس کانفرنس میں مزید یہ بھی کہنا تھا کہ میں ہلاک ہونے والوں کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، لیکن حقائق بھی پاکستان کے لوگوں کو معلوم ہونے چاہیے، کیونکہ اس بارے میں مختلف افواہیں چل رہی ہیں۔ لیکن یہ قتل ہے، جرم ہے، چاہے کچھ بھی کسی نے کیا ہو۔ کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ اس بے دردی کے ساتھ اس گھناؤنے انداز میں ویڈیو بنا کر کسی انسان کا قتل کر لے۔ اس کی نہ کوئی حکومت اجازت دیتی ہے، نہ کوئی معاشرہ اجازت دیتا ہے۔ سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ اس ضمن میں ہم نے فیصلہ دینے والے قبائلی سردار کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ تاہم ساتکزئی قبیلے کے سربراہ سردار شیرباز خان ساتکزئی نے گرفتاری سے قبل میڈیا کے کچھ چینل کو فون پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ الزام سراسر غلط ہے۔ انہوں نے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کی سربراہی میں کوئی جرگہ منعقد نہیں ہوا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ گاؤں کی سطح پر ہی لوگوں نے دونوں کو مارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ہم کارروائی کا حکم کر چکے ہیں۔ اس علاقے میں اسپیشل برانچ کے DSP کو معطل کر دیا گیا ہے اور اس کو اسی بنیاد پر معطل کیا گیا ہے کہ اس نے حکومت کو بتایا تھا کہ اس کی یہ ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ اس کیس میں ایک شخص بھی مدعی بننے کو تیار نہیں ہے اور اب اس حد تک اس معاشرے کی پستی کو دیکھیں کہ جب پولیس چھاپے مار رہی ہے تو خواتین ان پر پتھراؤ کر رہی ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ وائرل ہونے والی ویڈیو میں ہے کیا۔ اس ویڈیو میں تمام لوگ براہوی زبان میں بات کر رہے ہیں اور ان کا لہجہ وہی ہے جو کہ کوئٹہ اور مستونگ کے مختلف علاقوں میں بولا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا بشمول ایکس یعنی ٹویٹر پر اس
इस वीडियो को दर्जनों अफराद ने शेयर किया और इसे लाखों मर्तबा देखा गया। वीडियो बज़ाहिर किसी पहाड़ी मकाम पर बनाई गई जहां कच्ची सड़क के गिर्द वीराना है। शुरुआत में मुतअद्दिद व्हीकल डाले और जीपें देखी जा सकती हैं जिनके बाहर दिन की रोशनी में कई अफराद मौजूद हैं। बज़ाहिर ये अफराद सुर्ख लिबास और गंदमी चादर में मलबूस एक खातून को गाड़ियों से कुछ दूर खड़ा होने का कहते हैं। इस दौरान खातून बराहवी जुबान में कहती हैं कि सिर्फ गोली की इजाज़त है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि इस मौके पर कुछ लोग उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे तो उनकी तरफ से कहा गया कि जिरगे ने फैसला गोली मारने का दिया है, इसके अलावा किसी और का कोई हुक्म नहीं दिया गया। जिसके बाद वहां पर मौजूद मर्द ये कहते हैं कि हाँ, सिर्फ गोली मारने की इजाज़त है। इस मुकालमे के बाद वहां पर मौजूद मर्द ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि कुरान मजीद इनके हाथ से ले लो। ये वाज़ेह नहीं कि कुरान खातून के हाथ में था या मर्द के, जबकि इसके साथ बाद लोग ये कह रहे हैं कि खामोश 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 खामोशी खामोशी। इसके साथ एक मर्द गालियां भी देता सुनाई देता है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कुरान करीम खातून के हाथ में था। खातून इसके बाद कोई मुज़ाहमत नहीं करती बल्कि खामोशी से गाड़ियों से दूर खड़ी हो जाती हैं। इस बातचीत के बाद वीडियो में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा जाती है, जबकि इसके बाद एक एक करके चंद गोलियां चलाई जाती हैं। वीडियो में ये मालूम नहीं हो रहा कि पहले मर्द को गोली मारी गई या फिर खातून को। ताहम पहले मरहले की गोलियां चलाने के बाद ये आवाज़ सुनाई दी जाती है, उसको मार दो, जिस पर बहुत ज़्यादा गोलियां चलाने की आवाज़ आती है। इस दौरान एक शख्स किसी वीडियो बनाने वाले पर नाराज़गी का इजहार भी करता सुनाई देता है, जिसके बाद खातून पर कोई शख्स दोबारा चंद गोलियां चलाता है। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत का मजीद कहना था कि वीडियो में दिखाई गई बर्बरियत इंसानियत सोज है, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। डगारी कहाँ पे वाक़या है ये भी आपको बताते हैं। गैरत के नाम पर कत्ल किए जाने वाले मर्द और खातून का तल्लुक जिला कोयटा के इलाके डिगारी से था। डिगारी कोयटा शहर से अंदाज़न 45 किलोमीटर के फासले पर मशरक में वाक़ है। डिगारी और इसके साथ दीगर मुल्हिका इलाके मारवाड़ और मारगेट दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल हैं। इन इलाकों में बलोचों के सातकज़ई और समालानी कबाइल के अलावा दीगर बलोच कबाइलों से तल्लुक रखने वाले अफराद भी आबाद हैं। इन इलाकों में बड़ी तादाद में कोयले की कानें हैं, जबकि मकामी कबाइल से तल्लुक रखने वाले अफराद के मुआशी और रोज़गार का ज़रिया गल्ला बानी यानी भेड़ बकरियां चराने का काम करना भी है। जहाँ ये इलाके इंतहाई दुश्वार गुजार हैं, वहाँ इन इलाकों में कालदम अस्करियत पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी की सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। FIR में वाक़या किस तरह बयान किया गया है ये आपके सामने रखते हैं। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया की वायरल वीडियो को देखने के बाद पुलिस की टीम को वाक़े की तस्दीक के लिए मुतल्लिका इलाके में भिजवाया गया। पुलिस का कहना है कि मुखबर ने पुलिस टीम को बताया कि ये वाक़या ईद उल अज़हा से 3 रोज़ कबल संजीदी डिगारी इलाके में पेश आया। बताया गया है कि मकतूलीन बानो बीबी और एहसानुल्लाह को सरदार के पास फैसले के लिए लाया गया। FIR रिपोर्ट के मुताबिक मकतूलीन को कुल 15 अफराद 3 गाड़ियों में लेकर वहां पहुंचे थे। सरदार ने फैसले में कहा कि बानो बीबी और एहसानुल्लाह कारोकारी के मुर्तकिब हुए हैं, जिसे स्याहकारी भी कहा जाता है। सरदार ने उन्हें कत्ल करने का फैसला सुनाया और 15 अफराद जिनमें से 2 नामालूम हैं, उन्होंने मिलकर आतशीन असलहे से संजीदी मैदानी में बानो बीबी और एहसानुल्लाह को कारोकारी के इल्जाम में कत्ल कर दिया। FIR के मुताबिक इन अफराद ने मकतूलीन की वीडियो भी साथ साथ बनाई और वाक़े के 35 दिन बाद इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गोया अपने हाथों अपनी हलाकत का खुद बंदोबस्त कर लिया। पुलिस ने सरदार के फैसले पर अमल करने वाले 15 अफराद के खिलाफ बानो बीबी और एहसानुल्लाह को कत्ल करने और इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके लोगों में खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश करने के जुर्म में दफ़ा 302 और इंसदाद दहशत गर्दी के एक्ट 780A समेत दीगर दफात शामिल किया है। इंतजामिया का मौक़िफ़ क्या है?
वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुताबिक वीडियो मंजर आम पर आने के बाद रियासत की मुद्दत में दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और अब तक एक मुश्तबा कातिल को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाद अज़ां उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक और पैगाम में दावा किया कि अब तक 11 मुलजमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऑपरेशन जारी है, तमाम मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। रियासत मजलूम के साथ खड़ी है। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जमान शाहिद रिंद ने इससे कबल एक बयान में कहा था कि ऐसी सफाकाना हरकत नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मुलजमों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। कोयटा के डिप्टी कमिश्नर मेजर रिटायर्ड मेहरुल आबादी ने कहा कि इस वीडियो के बारे में तहकीकात का सिलसिला जारी है। ये वीडियो गुज़श्ता रोज मंजर-ए-आम पर आई थी, जिसका वज़ीर आला ने नोटिस लेकर इस बारे में तहकीकात का हुक्म दिया था। वो कहते हैं कि अभी इब्तदाई तौर पर यह मालूम हुआ है कि ये वीडियो पुरानी है। इस इलाके का तयन किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि आया ये कोयटा का इलाका मार वार्ड है या जिला मस्तूंग में दश्त का इलाका है। उन्होंने बताया कि जिला कोयटा में पुलिस हुकाम इस बारे में तहकीकात कर रहे हैं, जबकि मस्तूंग में लेविस फोर्स के हुकाम भी इस बारे में अपनी तफ्तीश और तहकीकात जारी रखे हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि हुकूमत ने इस वाक़े का सख्ती से नोटिस लिया है और इस वाक़े का मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा लिया जा रहा है। सरदार साहब की तरफ से अपने आप को बचाने के लिए इस वाक़े को मुतनाज़ा बनाना तो बनता है, इसलिए उन्होंने बयान दे दिया कि मैंने ऐसा फैसला नहीं किया था। इसी तरह से सरफराज बुगटी साहब ने भी नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है कि इनके दरमियान कोई अज़दवाजी शरई तलक नहीं था, बल्कि दोनों अपने अपने बच्चों के वालिदैन थे और बगैर किसी निकाह के ये चले गए थे। तो इस मामले को मुतनाज़ा बनाने वाले इन लोगों से कसम ली जा सकती है, इनको कोयलों पर चलाया जा सकता है। कोयलों पर चलकर सरदार साहब और वज़ीर आला साहब ने जो कुछ कहा है, मामले को मुतनाज़ा बनाया है, ये कोयलों पर चल के कसम दे दें तो ये तनाज़ा तय हो सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।